So fourth ventricle is a tent-like cavity of hind brain. Can you see here? The posterior view. Coronal section. Cerebellum निकाल लिया है यहाँ पे. Cerebellum is removed. What you can see here is cavity of fourth ventricle. See, it is a tent-like cavity of hind brain. It is situated in the posterior cranial fossa. Behind the pons and upper part of medulla and in front of cerebellum. तो cerebellum हमने निकाल लिया है. यहाँ पे आपको दिख रहा है this is pons and this is medulla. ठीक है. और ये जो कैविटी दिख रही है आपको this is fourth ventricle. Now you know the cavity, the central canal, the cavities of brain, they are lined by ependymal cells. एपेंडाइमल सेल्स के बारे में सुना है? इम्यूनोलॉजी में पढ़ा था. एपेंडाइमल सेल्स. एपेंडाइमल इट इज फिल्ड विद CSF. कैविटीज कैसी होती है? लाइन्ड बाय एपेंडाइमल सेल्स एंड फिल्ड विद CSF. ठीक है. So this cavity it is present between the pons, medulla, pons in the upper part, medulla in the lower part. This is upper part of medulla. This is lower part of pons. And behind cerebellum. तो cerebellum पीछे, pons और medulla के बीच में जो cavity होती है that is fourth ventricle. ठीक है. Now this cavity it is triangular in sagittal section. देखो, see this diagram. ये sagittal section है. sagittal section में हमें क्या दिख रहा है? cerebral hemisphere. हम बाद में पढ़ेंगे. इसको corpus callosum बोलते हैं. Then यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने brainstem पढ़ा है. This is midbrain, this is pons and this is medulla. Pons, medulla और पीछे this is sagittal section of cerebellum. इनके बीच में ये triangular दिख रहा है. Outline. This triangular cavity is fourth ventricle. It is triangular in outline in sagittal section. जब हम horizontal section लेंगे, this cavity is rhomboid in shape. ठीक है. Horizontal जब section लेंगे तो ये cavity हमें कैसे दिखेगी? Rhomboid in shape. Now see this cavity is continuous above with the cerebral aqueduct. This is midbrain. Midbrain की cavity होती है cerebral aqueduct. और नीचे होता है spinal cord. तो spinal cord की cavity होती है central canal. So inferiorly it continues with the central canal of medulla जो close part होता है medulla का spinal cord. क्या होगा? Inferiorly continues with the central canal and superiorly continues with the cerebral aqueduct of midbrain. ठीक है. Now अब इसका anatomy क्यों important है? Why it is needed to study the anatomy of fourth ventricle. Because this fourth ventricle is present in relation with the vital structures which are lying in the medulla, pons and cerebellum. आपको पता है medulla में होता है true vomiting center, cardiac respiratory center. ये जो vital structure होते हैं pons, medulla में and cerebellum. It is related to the cerebellum also. So अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर होता है, कोई कुछ इंजरी होती है, तो ये स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं. उसके वजह से जो कोई एब्नॉर्मलिटी होगी, जो भी हमें साइन होगी, ये सब स्टडी करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए वी नीड टू नो द एनाटॉमी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है. Then the fourth ventricle it communicates with the subarachnoid space. CSF होता है fourth ventricle का. It communicates or it escape from this ventricular system of brain to the subarachnoid space
3 openings in the fourth ventricle. fourth ventricle होता है, CSF फ्लो भी देखा था. तो इसमें इसके अलावा 3 openings होती है from where the CSF is escape from this ventricle into the subarachnoid space. ठीक है. तो अगर यहाँ के जो रूट होता है कम्युनिकेशन का, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, CSF का फ्लो होगा या ऑब्स्ट्रक्ट होगा. हो सकता है हाइड्रोकेफेलस. ठीक है. तो हमें ये ओपनिंग कहाँ पे होती है ये पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर इसके फ्लोर में क्या है, उसके रूफ में क्या है, उसके फ्लोर में क्या है, उसके फ्लोर में क्या है, उसके लेटरल बाउंड्रीज में क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो हम now we'll see this one by one. We'll study this line diagram. First see this line diagram. Pons. This one is pons. This one is medulla. Behind the pons and medulla. In front of cerebellum. Cerebellum के आगे pons और medulla के बीच में ये जो cavity दिख रही है, this is fourth ventricle. Now this one is the roof of fourth ventricle. Cerebellum से related है. This one is roof of fourth ventricle. It is a tent like. This one is roof. ये दोनों रूफ है. This is upper sloping surface and this is lower sloping surface and this one is floor of the fourth ventricle. ये क्या है? फ्लोर है. और ये क्या है? रूफ है. ठीक है. ना. So we'll study the four ventricle under following heads. Floor, its roof and its extensions. ठीक है. Floor, roof, its extensions. Then apertures means openings. Ventricle का opening. Then lateral boundary. Then choroid plexus and tila choroida. Tila choroida क्या होता है? Choroid plexus क्या होता है? देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. फ्लोर में क्या होगा? Now this is the line diagram showing floor of fourth ventricle. ठीक है. You have studied midbrain, studied pons, studied medulla. So this is a part of midbrain. This is the posterior surface. हम posterior view है ये. Midbrain stem का. This is posterior view of midbrain. This is posterior view of pons and this is posterior view. ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके नीचे this is posterior view of medulla. ठीक है. So this posterior surface of pons and upper part of posterior surface of medulla. They forms the floor of fourth ventricle. ठीक है. Forms the floor of fourth ventricle. Then this floor, this is rhomboid in shape. Diamond shape का है ये. This is rhomboid in shape. So this is called rhomboid fossa. Depression है. It is depression. Rhomboid or diamond shape. So it is called rhomboid fossa. ठीक है. Rhomboid fossa means floor of ventricle. अगर एग्जाम में आपको आता है कि ड्रॉ वेल लाइन डायग्राम ऑफ rhomboid fossa, आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है. So now it is divided into two parts. ये जो है stria medullaris, ये बीच में आपको जो दिख रही है lines. These are called stria medullaris. क्या होता है? इसके above this triangular part, it is formed by the posterior surface of pons, and this lower part, lower triangular part, it is formed by the upper part of posterior surface of medulla. But this is intermediate part. Junction between pons and medulla. This is intermediate part. ठीक है. Intermediate part. This one is prolonged laterally. यहाँ तक हमारा ये rhomboid fossa है. This is projected laterally. Lateral इसका extension है over the inferior cerebellar peduncle. Inferior cerebellar peduncle. You know, bundle of fibers connecting the medulla with cerebellum.
सेरेबेलम। नेक्स्ट क्लास आएगा, आपका नेक्स्ट क्लास आएगा, होना था, अगर सेरेबेलम होना था, अगर सेरेबेलम आज हो जाता तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती। बट कुछ वजह के हमें ये सेरेबेलम वाली क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी। तो अगली क्लास में आपको तो अगली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। ये मेडुला है, मेडुला से सेरेबेलम, मेडुला से सेरेबेलम, यहाँ पे सेरेबेलम चाहिए पीछे, जो मेडुला से सेरेबेलम, मेडुला से सेरेबेलम को कनेक्ट करने वाले जो बंडल ऑफ फाइबर्स हो गए, दे फॉर्म्स द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, दे फॉर्म्स द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है। देन यहाँ होता है पॉन्स और सेरेबेलम को जो कनेक्ट करने वाले बंडल ऑफ फाइबर्स हो गए, दे फॉर्म्स द मिडल सेरेबेलर पेडंकल, मिडल सेरेबेलर, वैसे सुपीरियरली मिड ब्रेन और सेरेबेलम को कनेक्ट करने वाले बंडल ऑफ फाइबर्स, दे आर कॉल्ड सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, कॉल्ड सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे जो सेक्शन दिखेगा आपको, ये वाला ऊपर से फाइबर, ये वाला ऊपर से फाइबर सुपीरियर, दिस वन इज इंफीरियर, दिस वन इज मिडल सेरेबेलर पेडंकल। राइट। तो ये जो आ रहा है, ये क्या है? इंफीरियर कॉलिकुला, इंफीरियर कॉलिकुला में हमने पढ़ा था, मिड ब्रेन में हमने पढ़ा था सुपीरियर कॉलिकुला, इंफीरियर कॉलिकुला। ये जो मिड ब्रेन से ये मिड ब्रेन से ये देखो, ये जो आ रहा है ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। दिस वन इज इंफीरियर, जो मेडुला से जो जा रहा है ऊपर की तरफ, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये याद रखो क्योंकि ये रूफ में आएगा, जब हम रूफ पढ़ेंगे तो ये चीजें आएगी। देखो ऊपर से सेरेबेलम तक आ रहा है सुपीरियर, और नीचे मेडुला से सेरेबेलम तक आएगा इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है। ये लेटरल बाउंड्री भी फॉर्म करती है और रूफ में भी आएगा। ठीक है। पहले फ्लोर देखते हैं, फ्लोर में क्या देखा हमने? अपर ट्रायंगुलर पार्ट, पॉन्स का पार्ट और लोअर ट्रायंगुलर पार्ट मेडुला का पार्ट। इंटरमीडिएट इज फॉर्म बाय स्ट्राया मेडुलारिस, दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म बाय स्ट्राया मेडुलारिस। नाउ फर्स्ट फीचर्स ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। फीचर्स क्या क्या होते हैं? सी दिस मिड लाइन, this one is median sulcus. ठीक है। So this entire floor it is divided into symmetrical half by median sulcus. This midline is median sulcus. मीडियन सल्कस के दोनों साइड, either side of median sulcus, longitudinal elevation. There is a longitudinal elevation. Median eminence. ठीक है। On either side of median sulcus, there is a longitudinal elevation called medial eminence. ये क्या था? median. क्या है? medial eminence. ठीक है। Now this medial eminence, it is bounded laterally by the sulcus limitans. ये जो लाइन है, this one is sulcus limitans. वैसे दूसरे साइड में होगी, this one is sulcus limitans. ठीक है। Now this area, this जो पेडंकल था, पेडंकल और सल्कस लिमिटास, इसके बीच का this area, in pons also in this area is vestibular area. This area is vestibular area. क्यों? Because it overlies the nuclei of vestibular होते हैं, it overlies इस एरिया में जो होगा, पॉन्स में क्या होते हैं? पॉन्स और मेडुला में वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं। उसके ऊपर का ये जो सरफेस है, दिस इज कॉल्ड वेस्टिबुलर एरिया। ठीक है। Now see this sulcus limitans, upper part of sulcus limitans, it ends into a triangular depression. This sulcus limitans end into a triangular depression called superior fovea. This is called superior fovea. ठीक है।
Now above the superior fovea, the the sulcus limitans flattened out and present a bluish gray area called locus ceruleus. Locus ceruleus. अब क्या होता है ये? यहाँ पे जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन, यहाँ होगा sulcus limitan के ऊपर, उसको कहते हैं superior fovea. उसी के ऊपर यहाँ पे फ्लैट sulcus limitan flattens into a bluish gray area. इसके ऊपर एक bluish gray area दिखता है, जिसे हम कहते हैं locus ceruleus. अब ये locus ceruleus, locus मतलब एरिया, locus ceruleus के अंदर क्या होता है? इस एरिया के अंदर क्या होता है? bluish gray कलर क्यों दिखता है हमको? Because इसके नीचे होते हैं deeply pigmented nerve cells. This color is due to the presence of deeply pigmented nerve cells. Pigment कौन से हो गए? Melanin pigment. समझ में आया? ये क्या है? locus ceruleus. ये कैसे कलर का है? bluish gray कलर का। क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर का जो एरिया है, के अंदर क्या होता है? पॉन्स में क्या होता है? this part contains deeply pigmented nerve cells. Pigment here is melanin. So this patch of deeply pigmented nerve cell, is called substantia ferruginea. इसको क्या कहते हैं? substantia ferruginea. ठीक है? ferruginea. So this nerve cells, they contains large quantity of norepinephrine. ये जो nerve cells है, pigmented nerve cells, melanin pigment size में, ये क्या contain करते हैं? large quantity of norepinephrine. इस एरिया को जो अंदर जो एरिया होता है उसको कहते हैं substantia ferruginea की वजह से जो फ्लोर में आपको डार्क एरिया दिखता है, डार्क ब्लूइश ग्रे एरिया दिखता है, उस एरिया को हम कहते हैं locus ceruleus. क्या कहते हैं उसको? locus ceruleus. ठीक है? And this color is due to the question है. कलर किसकी वजह से है? Very good. Melanin pigment darkly pigmented nerve cells, melanin pigment, and they contain high quantity of epinephrine. ठीक है? That substance, underlying substance is called substantia ferruginea. Overlying this area is called locus ceruleus. ठीक है? So inferiorly, जैसे ऊपर ये triangular depression में end हुआ sulcus limitans, इसको कहते हैं superior fovea, वैसे ही inferiorly it ends into inferior fovea. ठीक है? Inferiorly it ends into inferior fovea. The small depression over here. This is inferior fovea. Then on either side of median sulcus here there is an oval swelling. On either side of median sulcus, median eminence shows an oval swelling in the pontine part near the superior fovea. This swelling is due to the this is produced by the fibers from the motor nucleus of facial nerve which are hooking around the abducens nerve. It forms the internal genu of facial nerve. हाँ प्रसून. norepinephrine. तो फेशियल कॉलिक्यूलस क्या होता है? ये जो आपको ओवल स्वेलिंग दिखेगी ओवर द मीडियन एमिनेंस इन द पॉन्स पार्ट, दिस इज कॉल्ड फेशियल कॉलिक्यूलस. दिस फेशियल कॉलिक्यूलस इज ड्यू टू द इंटरनल जेनु ऑफ
facial nerve. इंटरनल जेनु ऑफ फेशियल नर्व। इंटरनल जेनु क्या होता है? इंटरनल जेनु क्या होता है? फेशियल नर्व के मोटर न्यूक्लिया होता है, फेशियल नर्व का जो मोटर न्यूक्लिया होगा, वहाँ से जो फाइबर्स आते हैं वो एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस को दे हुक अराउंड द एब्ड्यूसेंस न्यूक्लिया ऑन बोथ साइड, और ये जो टर्निंग होती है उनकी, जो ये जो टर्निंग होती है को टर्न करके पीछे आते हैं, टर्न करके जो पीछे आते हैं, ऐसे उसको हुक करके जो आते हैं, उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से क्या होता है? इलिवेशन होता है ओवर द मीडियन ओवल इलिवेशन which is called facial colliculus. This is called facial colliculus due to the internal genu of facial. ये सारी जो प्रोसीजर होती है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं इसको नाम है इसको कुछ, ये जो ऐसे हुकिंग हो रही है, जो टर्निंग अराउंड हो रही है फाइबर्स की, मोटर फाइबर्स की अराउंड एब्ड्यूसेंस, they are going towards the some other nuclei, facial nerve, which biotaxis? Very good. It is neurobiotaxis. कौन से न्यूक्लिया की तरफ जा रहा है ये मोटर? मोटर कौन से न्यूक्लिया की तरफ जा रहे हैं? मोटर फाइबर्स। वेरी गुड। सेंसरी, कौन सा सेंसरी होता है यहाँ? फेस को स्पाइनल न्यूक्लियस होगा। अच्छा ठीक है, ये चुपचाप आप सब आगे बढ़े। इतना समझ में आया? ठीक है। तो हमने अपर पार्ट में क्या देखा? मीडियन सल्कस, मीडियन एमिनेंस पे ओवल इलिवेशन, फेशियल कॉलिकुलर, उसके बाद सल्कस लिमिटस, यहाँ सुपीरियर फोविया के ऊपर लोकस सेरुलस, उसके अंदर सबस्टेंशिया फिरोजा। ठीक है, ये सब हमने देखा। लोअर पार्ट पे आते हैं, सल्कस लिमिटस, स्मॉल डिप्रेशन और इंफीरियर फोविया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर फोविया। और इसके ये जो पेडंकल्स है उसके और सल्कस लिमिटस के बीच का दिस एरिया इन दी मेडुला आल्सो एंड इन दी पोन्स आल्सो, दिस इज वेस्टिबुलर एरिया, इट ओवरलाइज दी वेस्टिबुलर न्यूक्लिया। ठीक है, नाउ हियर सी दिस इज सल्कस लिमिटस। So from the inferior fovea, the sulcus limitans descends obliquely towards the median sulcus. This line is extending from the inferior fovea towards the median sulcus. ठीक है? Now this sulcus divides the median eminence. ये जो median eminence है, this divides the median eminence in the medullary part of the floor into two triangles. This triangle between striamedullaris, this triangle is called hypoglossal triangle, and this one, this lower part, it is called vagal triangle. ठीक है, सो इंफीरियर फोविया से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द मीडियन सल्कस which will divide this median eminence into two triangles. Above this triangle is hypoglossal triangle which overlies the hypoglossal nuclei, and below this triangle is vagal triangle which overlies the nuclei of vagus, glossopharyngeal and cranial part of accessory nerve. ठीक है, तो इंफीरियर फोविया से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द मीडियन सल्कस which will divide the median eminence into two triangles. The above this triangle is hypoglossal triangle which overlies the hypoglossal nuclei, and below this triangle is a vagal triangle which overlies the nuclei of vagus, then
glossopharyngeal, and then cranial part of accessory nerve. 9, 10th and 11. कौन सा न्यूक्लियस था? 9, 10th and 11 मेडुला में कौन सा न्यूक्लियस था? ठीक है. Now this vagal triangle, it is divided into two parts again. This is again divided into two parts by a faint line over here. This faint line, this translucent ridge, it is called funiculus. It is called funiculus separalis. This is called funiculus separalis. And this area, now पॉन्स में हमने देखा था posterior surface में आपने close part of medulla के posterior surface में this is nucleus gracchalis. Nucleus cuneatus. This is inferior cerebellum. So ये nucleus gracchalis. So this area between this ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये जो न्यूक्लियस ग्रेसाइलिस के ऊपर जो एलिवेशन, इसके वजह से ये जो एलिवेशन होता है पोस्टीरियर सरफेस पे, उसे हम कहते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल. और ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड फनिकुलस सेपरास. This area is called area postrema. This area is called area postrema. This area contains highly vascular neuroglial tissue. And this area postrema, it is a true vomiting center. ठीक है. हमने ये वेगल ट्रायंगल देखा था. इस लाइन के नीचे का ट्रायंगल इज वेगल ट्रायंगल. This वेगल ट्रायंगल is again divided into two parts by a faint ridge, by a translucent ridge called funiculus separalis. So this funiculus separalis, इसके ग्रेसाइल ट्यूबरकल, इसके बीच का this area, it is called area postrema. This area is a true vomiting center. Very good. Yes, Shrestha. यहाँ पे blood brain barrier भी नहीं होता. आपको जब ब्लड सप्लाई पढ़ाएंगे उसमें आपको ये चीजें पढ़ाएंगे कि यहाँ का ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है. ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब क्या होगा? ठीक है. This area is divide of blood brain barrier. It is a vomiting center and it contains highly vascular neuroglial tissue, supporting tissues जो होते हैं. It contains highly vascular neuroglial tissue. Astrocytes, microglia, ये सब oligodendrocytes है ना. ये सारे क्या हो गए? न्यूरोग्लायल टिश्यू. दिस एरिया कंटेन्स हाईली वैस्कुलर न्यूरोग्लायल टिश्यू एंड इट इज अ ट्रू वॉमिटिंग सेंटर. Right? Now this inferolateral margins of the fourth ventricle, this inferolateral margins of fourth ventricle, they are marked by narrow white ridge. ये जो white यहाँ पे white ridge होगी. This is called tinea. हमने एक बार और पढ़ा था. ribbon like bands, narrow bands, ribbon like. यहाँ पे भी white कलर के narrow ribbon like bands होते हैं. Which forms the inferolateral margin of floor of fourth ventricle. This is called tinea. And this tinea from either side here meet at an angle, inferior angle here, and this meeting is called obex. This is called obex. हाँ मुस्कान, that is a true vomiting center. ठीक है. Chemoreceptor trigger zone. Vomiting center. Chemoreceptor trigger zone. Right Muskan? CTZ. So कहाँ थे हम? ओबेक्स क्या होता है? दो टीनिया का मीटिंग पॉइंट, inferior angle, ओबेक्स.
चल टर्म्स हो गए। टर्म्स हो गए। इंफीरियर पार्ट में हमने क्या क्या देखा था? इंफीरियर पार्ट में मीडियन एमिनेंस, मीडियन median एमिनेंस eminence divided into two part, hypoglossal triangle, vagal triangle, vagal triangle again divided into two part. The lower part is The area lower part is area postrema. Here, then infrolateral margin is by tinea, wide bands, narrow wide bands, narrow wide bands, this tinea, inferior angle, this two inferior tinea angle, meets. this two tinea meets. This meeting is called This obex. meeting is called obex. ठीक है, this area is vestibular area, vestibular area. then stria medullaris, intermediate area आता है। कितना हो गया? अपर पार्ट में हो गया? अपर पार्ट में क्या क्या देखा? लोअर पार्ट में क्या क्या देखा? अब इंटरमीडिएट पार्ट। बढ़े आगे। बढ़े आगे। So this intermediate part, it is marked by the presence of delicate bundles of transversely arranged fibers. This transversely arranged white fibers. Bundles of transversely arranged white fibers. These are called stria medullaris. These are called stria medullaris. Stria medullaris क्या होता है? Stria means जो white is striated appearance in the medulla. जो white fibers की वजह से जो striated appearance इसलिए हम उसको कहते हैं stria medullaris। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये white fibers आ रहे हैं। ये white fibers कहाँ से आएंगे? ये fibers कहाँ से आएंगे? Cochlear nuclei। vestibular हो गया तो vestibular हो गया। वेस्टिबुलर के लेटरली कॉक्लियर न्यूक्लिया होते हैं। कॉक्लियर न्यूक्लिया होते हैं। अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में आना शुरू होता है। अपर पॉन्स ऑफ मेडुला में आना शुरू होते हैं। पॉन्स में होते हैं। ये जो कॉक्लियर न्यूक्लिया हो गई यहाँ से ये व्हाइट फाइबर्स, एक्सोनल फाइबर्स आते हैं। स्ट्राया मेडुलारिस बनाएंगे एंड्स इनटू द मीडियन सल्कस। लेटरली यहाँ कॉक्लियर न्यूक्लिया जो होंगे वहाँ से ये फाइबर्स आएंगे। वहाँ से ये फाइबर्स निकल रहे हैं। वहाँ से आएंगे एक्सोनल फाइबर्स, वहाँ से आएंगे फाइबर्स एंड द एंड्स इनटू द सल्कस लिमिटांस। ठीक है, ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा। पीजी लेवल का है, याद रहता है, वेल एंड गुड। आगे बढ़े। सो द स्ट्रक्चर्स अंडरनीथ द फ्लोर ऑफ फोर्थ कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? स्ट्राया मेडुलारिस के अबाव क्या था? एब्ड्यूसेंस न्यूक्लिया के अराउंड फाइबर्स ऑफ फेशियल मोटर फाइबर्स ऑफ फेशियल फॉर्मिंग इंटरनल जेनी। देन वेस्टिबुलर न्यूक्लिया एंड कॉक्लियर न्यूक्लिया आल्सो। Then beneath the stria medullaris यहाँ पे क्या होगा? Hypoglossal nuclei, then vagus का glossopharyngeal का cranial part of accessory nerve nuclei. Then true vomiting center here and also medulla के underneath होता है vital centers, respiratory centers, cardiac center। ये सारे वाइटल सेंटर्स हो गए एंड ट्रू वॉमिटिंग सेंटर नियर द एरिया पोस्ट्रेमा। ठीक है। ये वही सब है जो भी हमने पढ़ा है। सारे पॉइंट्स। अब ये डिसेक्टेड पार्ट है। डिसेक्टेड पार्ट डॉर्सल व्यू। इसमें देखो ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। जहाँ से पढ़ा है वहाँ देखते हैं। दिस इज पीनियल ग्लैंड। ये जो दिख रहा है मिडलाइन एलिवेशन, दिस इज पीनियल ग्लैंड। सुपीरियर कॉलिकुलर, इंफीरियर कॉलिकुलर, सुपीरियर कॉलिकुलर। यहाँ से जो आ रहा है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये जाएगा सेरेबेलम की तरफ। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। देन यहाँ पे फेंट लाइन दिखेगी। इमेजिन करो यहाँ पे स्ट्राया मेडुलारिस के ऊपर दिस इज पार्ट ऑफ पॉन्स। स्ट्राया मेडुलारिस के नीचे दिस इज अपर ओपन पार्ट ऑफ मेडुला एंड दिस इज क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला। तो ये जो कैविटी दिख रही है आपको, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। इसमें भी हमने सेरेबेलम निकाल दिया है और हम पीछे से देख रहे हैं इसको। ठीक है, डॉर्सल एस्पेक्ट। तो यहाँ दिस वन इज मीडियन सल्कस मीडियन सल्कस होना चाहिए। ठीक है।
ठीक है। ये मीडियन मीडियन एमिनेंस होना चाहिए। ये वेस्टिबुलर एरिया होना चाहिए। और ये दिख रहा है आपको ये लाइन, दिस इज सल्कस लिमिटांस, दिस इज सल्कस लिमिटांस। ठीक है ना। हियर यहाँ पे वेगल ट्रायंगल होना, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल होना चाहिए, और यहाँ नीचे वेगल ट्रायंगल होना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे दिस एपेक्स इज कॉल्ड ओबेक्स। दिस इज ओबेक्स। मीडियन सल्कस लिमिटांस। दिस वन इज मीडियल एमिनेंस। वेस्टिबुलर एरिया। दिस इज हाइपोग्लॉसल। ट्रायमेडुलर इसके नीचे, दिस इज हाइपोग्लॉसल ट्राइगॉन। जो ट्रायंगल है उसे हाइपोग्लॉसल ट्राइगॉन भी बोलते हैं। हाइपोग्लॉसल ट्राइगॉन, और नीचे यहाँ होना चाहिए वेगल ट्रायंगल। ठीक है, एंड यहाँ पे दिस वन इज इंफीरियर एंगल ऑफ द फ्लोर इज ओबेक्स। ठीक है, इतना भी आप आइडेंटिफाई कर लो स्पेसिमेन में, वेल एंड गुड। ठीक है, पेडंकल्स। ठीक है, पेडंकल्स सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स। ऐसे यहाँ से आएगा ये नीचे इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स। यहाँ पे ऊपर जाएंगे इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स, ऊपर आएगा सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स। So lateral boundaries formed by superior cerebellar peduncles. Inferolateral boundary formed by inferior cerebellar peduncles, supplemented by gracile tubercles and cunate tubercles. ये सुपेरोलेटरल बाउंड्री होगी, इंफीरोलेटरल बाउंड्री होगी, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा फ्लोर है, सॉरी ये हमारा वेंट्रिकल की इंफीरोलेटरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल सप्लीमेंटेड बाय क्यूनेट ट्यूबरकल एंड ग्रेसाइल ट्यूबरकल। दिस एलिवेशन इज ग्रेसाइल ट्यूबरकल। ठीक है, लेटरल बाउंड्री क्लियर। देखो इस डायग्राम में यहाँ में एक सजाइटल सेक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे इसका सेरेबेलम का सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये जो आ रहा है दिस इज सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, दिस वन। ठीक है, दिस फॉर्म्स द सुपेरोलेटरल बाउंड्री, forms the supero-lateral boundary. वैसे नीचे से आएगा inferior cerebellar peduncle जाएगा, inferior cerebellar peduncle। यहाँ पे कट पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट पोर्शन दिख रहा है। Now this inferior cerebellar peduncle supplemented with cunate tubercle and gracile tubercle. They form the inferolateral boundary. ठीक। अब आते हैं रूफ पे। ठीक है, अब रूफ पढ़ने के पहले थोड़ा सा हमें सेरेबेलम के पार्ट्स भी देखने होंगे। सेरेबेलम दिस इज inferior surface of cerebellum. ठीक है, ये क्या है? inferior surface of cerebellum. So two cerebellar hemisphere. This one is another. So these two cerebellar hemisphere. They are connected in the midline by this narrow worm-like structure called vermis. दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, इनका जो कनेक्शन है नैरो वर्म लाइक कनेक्शन इज कॉल्ड वर्मिस। ठीक है, दिस वन इज वर्मिक्स। अब ये वर्मिक्स के अलग अलग डिवीजन्स होते हैं। वर्मिक्स के क्या होते हैं? डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, सुपीरियर वर्मिक्स का एक पार्ट होता है लिंगुला, और इंफीरियर वर्मिक्स का एक पार्ट होता है सुपीरियर वर्मिक्स। इसका एक पार्ट होगा लिंगुला,
और ये इंफीरियर वर्मिक्स है, इसका एक पार्ट होता है नोड्यूल। नोड्यूल, नोड्यूल, ठीक है। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है दिस इज वर्मिक्स, ये पूरा वर्मिक्स है। सुपीरियर वर्मिक्स, सुपीरियर वर्मिक्स, दिस इज इंफीरियर वर्मिक्स। सुपीरियर वर्मिक्स का ये जो रेड कलर में दिस इज लिंगुला, और ये जो ब्लू कलर में दिखाया है दिस वन इज नोड्यूल, राइट। नाउ नोडूल से यहाँ पे ऑन ईदर साइड होता है एक और लोब, इसके 3 लोब होंगे, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड नोडुलर लोब। सो फ्लोक्यूलस और नोड्यूल ये मिलके बनाते हैं फ्लोक्यूलस, ठीक है। दिस इज नोड्यूल, दिस इज फ्लोक्यूलस। ये फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है। सो हम फास्ट जाएंगे, फ्लोक्यूनुडुलर लोब, this is flocculus, and this is peduncle of flocculus. This is peduncle of flocculus, and this is nodule, and this is nodule, which is a part of inferior vermis. This one is lingula, and this one is lingula. ये आपको this is inferior view है, inferior surface है, इसमें रेड से दिखाया है anterior lobe है, green से is posterior lobe है, and this जो blue से दिखाया है this is nodular lobe, ठीक है। तो ये अगली क्लास में सेरेबेलम में सारा आपको डिटेल में होगा। आज की क्लास में क्या क्या याद रखना है आपको? सेरेबेलम, यहाँ बीच में क्या होगा? वर्मिक्स, सुपीरियर वर्मिक्स का ये जो पोर्शन है दिस इज नोड्यूल, दिस वन इज लिंगुला, एंड दिस वन इज समझ में आया? दिस इज लिंगुला एंड दिस वन इज नोड्यूल। और फ्लोक्यूलस जो होगा वो लेटरली होगा दोनों साइड में, जो यहाँ हमने सेक्शन लिया है तो कट गया है, ठीक है। तो हम जब रूफ पढ़ेंगे so roof is this, see here roof is this tent like, this is upper sloping part, and this is lower sloping part of roof. Upper sloping part, this is lower sloping part of roof. उसका जो apex है, it is in the white matter of cerebellum. Apex of roof is in the white matter of cerebellum. So this upper sloping part, it is related to the lingula. Upper sloping part के ऊपर क्या होगा? ये टेंट के ऊपर यहाँ क्या होगा? लिंगुला और this part, this inferior, this lower sloping part, it is related to the nodule. ठीक है। अब लाइन डायग्राम में देखने की कोशिश करते यही चीज। पॉन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम में यहाँ बीच में वर्मिक्स होगा, वर्मिक्स का दिस पार्ट है सुपीरियर वर्मिक्स का लिंगुला, इंफीरियर वर्मिक्स का नोड्यूल, ठीक है। दिस इज ट्रायंगुलर आउटलाइन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, सजाइटल सेक्शन में हमको फोर्थ वेंट्रिकल दिख रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल में दिस इज रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर वी हैव स्टडीड। नाउ द रूफ हैज अपर स्लोपिंग सरफेस एंड लोअर स्लोपिंग सरफेस। This one is upper sloping, this one is lower. Upper sloping surface, it is related to the lingula. And the lower one, it is related to the nodule. Right? And its apex. ये टेंट के जैसा देखो। The apex of this tent, it is in the white matter of cerebellum. It is in the white matter of cerebellum. ठीक है। अब यही हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सुपीरियर व्यू, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सुपीरियर व्यू। क्या किया है हमने? यहाँ से सेक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ से सेक्शन लिया है और हम ऊपर से देखेंगे उसको, क्या दिखेगा?
So roof, this upper sloping part, it is formed by, हमने देखा था कि horizontal section में ये fossa कैसे दिखती है, rhomboid in shape. It is rhomboid in shape. See? So this upper sloping surface, it is formed by the superior cerebellar peduncles. upper जो roof का अपर स्लोपिंग सरफेस ये किससे बनता है, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल. सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के बीच में क्या होगा, व्हाइट मैटर. दिस गैप बिटवीन सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कहाँ से आ रहे हैं, मिड ब्रेन से आ रहे हैं. इंफीरियर कॉलिकुलर का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है. यहाँ से जो ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल आ रहे हैं टुवर्ड दिस सेरेबेलम, दे फॉर्म रूफ. अब इनके बीच का गैप, इट इज ब्रिज्ड बाय द white matter, thin sheet of white matter called superior medullary velum. It is called superior medullary velum. Okay, so upper sloping part of roof is formed by the superior cerebellar peduncles and a thin sheet of white matter called superior medullary velum that bridges this triangular gap between these two peduncles. And it is related to the lingula. इसके ऊपर क्या होगा, lingula. इसके ऊपर क्या होगा, on it lies the lingula of superior vermix of cerebellum. Then the lower part, the lower sloping part is formed by this lower part, it is formed by a thin sheet of non-nervous tissue called inferior medullary velum. नीचे वाला portion is formed by thin sheet of non-nervous tissue. white matter था, यहाँ पे कोई भी nervous tissue नहीं है. It is formed by the thin sheet only. It is called inferior medullary velum. Inferior medullary velum. चलो white matter नहीं है, non-nervous tissue है. किससे form होगी, किससे बनेगा? So it is formed by the ependyma and pia matter. It is formed by the ependyma and pia matter. देखते हैं इसको. And it is related to the nodule of inferior vermix of cerebellum. ठीक है. Upper sloping part, lower sloping part. Upper part is formed by superior cerebellar peduncle. उनके बीच में superior medullary velum. Thin sheet of white matter related with lingula. The lower sloping part, it is formed by inferior medullary velum, which is made up of ependyma and pia matter, and it is related with the nodule. It is related with the nodule. ठीक है. Again sagittal section. This is upper part of roof and this is lower part of roof. So this upper part, it is formed by superior cerebellar peduncle. दोनों साइड से आएंगे, मिड ब्रेन से cerebellum की तरफ. And then उनके बीच का गैप, it is bridged by superior medullary velum, thin sheet of white matter. Now inferior part, this part is related to the nodule. This part is formed by, now see this is cavity is lined by ependymal cells. ये होते हैं न्यूरोइपिथेलियल सेल्स. आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा. जैसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ह्यूमन को लाइन करते हैं, म्यूकोजा को लाइन करते हैं. वैसे यहाँ पे जो कैविटी होगी, सेंट्रल कैनाल जो होता है और जो बाकी कैविटीज होती है, लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स. These are ependymal cells. And now pia matter होता है सबसे जो closely attached layer is of meninges. pia matter पूरा इसे भी कवर करेगा, cerebellum को भी कवर करेगा. और यहाँ जो गैप होती है और cerebellum के बीच में जो गैप होती है, ये पूरा पहले इसको कवर करेगा. pia matter पूरा
सेरेबेलम को कवर किया, अंदर तक गया, देन फ्रॉम हियर इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम हियर इट रिफ्लेक्ट्स, इट लाइंस द एपेंडाइमा ऑफ कैविटी एंड देन इट कंटिन्यूज विद द डॉर्सल सरफेस ऑफ मेडुला। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है रेड कलर की, ये क्या है? पायामेटा। पायामेटा पहले क्या करेगा? सेरेबेलम को कवर करेगा, पूरा कवर करेगा अंदर तक, एंड देन फ्रॉम हियर इट रिफ्लेक्ट्स फॉर्म अ फोल्ड ऑफ पायामेटा। यहाँ आपकी गया, देन इट रिफ्लेक्ट्स इंटीरियरली, यहाँ पे फोल्ड फॉर्म हुई है पायामेटा की। Now this fold, this anterior fold, this one is a dorsal, this one is ventral fold of pyometer. This ventral fold of pyometer covers the ependyma of ventricle. ठीक है, ependyma of ventricle पहले पूरा ventricle को कवर किया, and then it continues with the dorsal surface of medulla. This is medulla. This is cavity of medulla. Lower part जो medulla होगा, close part, इसकी cavity of central canal of medulla. Then it covers the first ventricle and then continues with the dorsal surface of medulla. जितना red dotted line दिखती है उसको ट्रेस करो, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो फोल्ड होती है पायामेटर की, ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, ये प्लस दिस एपेंडाइमल लाइनिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, एपेंडाइमल लाइनिंग, ये जो होती है दे क्या फॉर्म करेंगे? दे फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ वेंट्रिकल। समझ में आया? लोअर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो फोल्ड होती है, ये डबल फोल्ड जो होगी पायामेटर की प्लस एपेंडाइमल सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको टर्म दिया है, इनको हम कहते हैं टीला कोरॉइडे। क्या कहेंगे हम? टीला कोरॉइडे। ठीक है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकली नहीं आता क्वेश्चन, वाइवा में अगर पूछा आपको टीला कोरॉइडे मतलब क्या होता है, तो टीला कोरॉइडे डबल फोल्ड ऑफ दिस पायामेटर का प्लस एपेंडाइमल सेल्स, टीला, उनको क्या कहते हैं? टीला कोरॉइडे। ठीक है, अब नाउ दिस लोअर पार्ट ऑफ रूफ, ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट ऑफ रूफ हियर, देखिए पूरा कंटीन्यूअस नहीं है, पायामेटर यहाँ पे पूरा कंटीन्यूअस नहीं है, इट शोज एन ओपनिंग। The lower part of roof shows an opening. That opening is called medial opening, median aperture. और अच्छा सा नाम दिया है foramen of Magendie. Foramen of Magendie. ठीक है, lower part of roof shows an median opening. Median aperture और median opening. Median opening is called foramen of Magendie. Foramen Magendie से क्या होता है? यहाँ का जो CSF होगा, escape from this foramen into subarachnoid space through this cerebellomedullary system. Cerebellomedullary system, also called cisterna magna. It is part of subarachnoid system. इसके around क्या है? subarachnoid space है, subarachnoid system है, उसमें ये CSF escape होगा fourth ventricle से, कहाँ से? foramen of Magendie। पहले कहाँ आएगा? cerebellomedullary system और cisterna magna। यहाँ से ये जाएगा subarachnoid space में। ठीक है, चलिए देना, बहुत ज्यादा याद नहीं रहा तो चलेगा, याद करना है कि फोरामेन मेजेंडी से फोर्थ वेंट्रिकल का एस्केप इनटू सबएरेक्नॉइड स्पेस। ठीक, अब एक ओपनिंग होगी, ऐसी और दो ओपनिंग होती है जिससे सीएसएफ एस्केप होता है फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल इनटू सबएरेक्नॉइड। दिस इज मीडियन ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब वैसे क्या होते हैं? रिसेसेस होते हैं। चलिए एक ओपनिंग देखिए हमने, अब हम देखते हैं रिसेसेस। ठीक है, तो हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो एग्जैक्ट रोम्बॉइड शेप की नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब हम लेते हैं ऐसे रोम्बॉइड शेप की नहीं होगी, इसके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, उसको हम रिसेसेस कहते हैं। एक्सटेंशंस होते हैं उसको रिसेसेस कितने होते हैं? 5 इन नंबर्स,
extensions from the cavity, two lateral, यहाँ floor है, यहाँ पे cerebellum है, this is anterior part, this is posterior part, यहाँ पे क्या है, floor है, यहाँ पे क्या है, cerebellum, यहाँ पे क्या है, cerebellum. तो फ्लोर जो हमने देखा था स्ट्रेचिंग देखी थी ट्रायमेडुलरिस की सेरेबेलर पेडंकल पे, यहाँ पे दिस इज फ्लोर ऑफ, यहाँ तक हमारा फोर्थ वेंट्रिकल था, आउटलाइन, यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो रहा है सेरेबेलर पेडंकल का जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये जो हमारी कैविटी थी रोम्बॉइड शेप, यहाँ पे एक्सटेंशन होगा ओवर द सेरेबेलर ऑन ईदर साइड, लेटरली एक्सटेंड होके ओवर द सेरेबेलर पेडंकल. These are called lateral recesses. These are called lateral recesses. ठीक है. यहाँ पे ये जो है यहाँ से जो फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ तक अगर है, इसका आगे एक्सटेंशन पाउच लाइक एक्सटेंशन. ठीक है, पूरा का पूरा एंगल नहीं होगा, इट इज अ पाउच, मोर लाइक अ पाउच लाइक जो एक्सटेंशन है लेटरल, व्हिच आर कॉल्ड लेटरल एक्सटेंशंस. ठीक है, तो ये जो रोम्बॉइड शेप का था, इस रोम्बॉइड वहाँ से ये पाउच लाइक एक्सटेंशन हो रहा है. यहाँ तक अगर हमारा रोम्बॉइड का लेटरल एंगल होना चाहिए, फिर यहाँ से आगे एक्सटेंड हो रहा है. So these are lateral recesses. These are lateral recesses of fourth ventricle. And this recesses opens. They shows an opening. दोनों जो होते हैं lateral recesses, वो opening शो करते हैं. ठीक है, this opening is called foramen of Mischka. This is called foramen of Mischka. ठीक है. हॉरिजॉन्टली देखा है हमने, ये पूरा ऐसे रोम्बॉइड शेप का नहीं है. यहाँ से ये लेटरल एंगल से एक्सटेंशन हो रहा है और भी सेरेबेला इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल. हमारी कैविटी एक्सटेंड हो रही है, मोर लाइक अ पाउच. नियर दिस Hanikita. ठीक है. So this is more like a pouch, and this pouch shows an opening. They show openings on either side. These openings are called foramen of Mischka. Opening से भी जो fourth ventricle का CSF escapes from these openings into the subarachnoid space. So this is upper part of roof, this is lower part of roof. This lower part of roof in the median plane here shows an opening called foramen of Magendie. On lateral side opening होती है, उसको कहते हैं foramen of Mischka. दो foramen of Mischka है, एक foramen of Magendie. ये foramen of Mischka, Magendie, ये क्या करेगी? Communicates the CSF of fourth ventricle with the subarachnoid space. Okay. So CSF of fourth ventricle from these three openings into the subarachnoid space. Three openings are one median opening that is called foramen of Magendie, which is present at the lower part of roof of fourth ventricle. And two lateral openings called foramen of Mischka, which are present at the lateral recesses of fourth ventricle. ठीक है. अब ये तीन ओपनिंग्स हो गई जिससे CSF जा रहा है. इसके अलावा भी दो ओपनिंग्स होती है. एक हमने देखी थी सेरेब्रल एक्वेडक्ट से सुपीरियरली कम्युनिकेट हो रहा है, और नीचे सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला, क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला का सेंट्रल कैनाल से कम्युनिकेट हो रहा है. देखा था हमने ये ये जो वेंट्रिकल है कम्युनिकेट सुपीरियरली दिस कैविटी कम्युनिकेट्स सुपीरियरली विद सेरेब्रल एक्वेडक्ट एंड इंफीरियरली विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ पार्ट ऑफ मेडुला. ठीक है.
So this angle of ventricle का this angle is called superior angle. This one is called inferior angle. जहाँ से सेंट्रल कैनाल में जा रहा है inferior angle. जो lateral दो extensions हमने देखे थे lateral recesses उनको हम कहते हैं lateral angles of fourth. तो angles कितने हुए? ventricle के superior angle, inferior angle, lateral angles. 4 है. Openings कितनी है? 5 openings है. Cerebral aqueduct से communication, central canal से communication, foramen of Magendie, foramen of Lishka. Total 5 openings है. Amongst which 3 openings communicate with the subarachnoid space. 5 opening में से 3 openings है foramen of Lishka की 2 और foramen of Magendie की 1. दे वहाँ से through this openings CSF escape into the subarachnoid space. ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया. हमने क्या क्या देखा अब तक? फ्लोर देखा, लेटरल बाउंड्री देखी, रूफ देखा, रूफ के बाद हमने ओपनिंग्स रिसेसेस देखी. कौन सी रिसेसेस? हाँ, रिसेसेस हमारी कंप्लीट नहीं हुई अभी. तो एक हमने देखा था लेटरल रिसेसेस देखी थी. अब डॉर्सल रिसेसेस होती है. ठीक है, यहाँ पे सेरेबेलम है, यहाँ पे फ्लोर है, फोर्थ वेंट्रिकल का सेरेबेलम है. ठीक है, इससे रिलेटेड 3 ओपनिंग्स होती है. डॉर्सो मीडियन एंड 2 डॉर्सो लेटरल रिसेसेस. डॉर्सो मीडियन एंड 2 डॉर्सो लेटरल रिसेसेस. ये डॉर्सो मीडियन जो होगी ये नोड्यूल के ऊपर का एक्सटेंशन. इसको हम लेटरल व्यू में देखते हैं फिर से. ये नोड्यूल है, नोड्यूल के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये एपेक्स जिसको हमने बोला था, ये एक्सटेंशन. ये आगे जो व्हाइट मैटर में जा रहा है, दिस इज मीडियन डॉर्सल रिसेस अबाउट द नोड्यूल. और यहीं से डॉर्सोलेटरल रिसेसेस ऑन ईदर साइड ऑफ नोड्यूल. बीच में है तो नोड्यूल के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में यहाँ से जो 2 एक्सटेंशंस आएगी डॉर्सोलेटरल रिसेसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, सजाइटल सेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ऐसे दिखेगा. डॉर्सो मीडियन रिसेस अबाउट द नोड्यूल एंड डॉर्सो लेटरल रिसेस ऑन ईदर साइड ऑफ नोड्यूल. ये सेरेबेलम से रिलेटेड है, फ्लोर से रिलेटेड. There are 2 lateral recesses in front of inferior cerebellar peduncles. Dorsomedian recess above the nodule in the white matter of cerebellum, and these 2 on either side of dorsolateral recesses. ठीक है, तो रिसेसेस कितनी होगी? 5 रिसेसेस होगी. ओपनिंग्स कितनी होगी? 5 ओपनिंग्स होगी. उसमें से 3 कम्युनिकेट करती है subarachnoid space के साथ. एंगल्स कितने हो गए? 4. सुपीरियर, इंफीरियर एंड 2 लेटरल एंगल्स. फ्लोर हो गया, बाउंड्री होगी, लेटरल बाउंड्री होगी. देन रूफ हो गया. ठीक है, अब बचता है कोरोइडल प्लेक्सस. क्या बचता है? कोरोइडल प्लेक्सस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब कोरोइडल प्लेक्सस देखो यहाँ क्या है. एम्ब्रोलॉजिकली फोर्थ वेंट्रिकल डेवलप हो रहा है. पोंटा इन्फेक्शन फॉर्म होगा. पोंटा इन्फेक्शन की वजह से जो कैविटी होती है हाइंड ब्रेन की वो स्ट्रेच होगी, एनलार्ज होने की वजह से यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसको बड़ा दिखाया है. सपोज दिस इज कैविटी. इट इज लाइन्ड बाय एपेंडाइमल सेल्स. Then it is covered by this pia matter. Ependymal cells covered by pia matter. इन दोनों को क्या कहते हैं? टीला कोरोइडा. तो क्या कहते हैं? टीला कोरोइडा. अब यहाँ पे कैपिलरीज आई. टफ्ट ऑफ कैपिलरी
नहीं, डोर्सोलेटरल रिसेस नहीं, डोर्सोलेटरल रिसेस कहीं ओपन नहीं ब्लाइंड होती, पाउचेस होते हैं वो। ब्लाइंड पाउचेस होते हैं वो। डोर्सोमीडियन और डोर्सोमीडियन दोनों और डोर्सोलेटरल दोनों रिसेस कहीं ओपन नहीं होगी, ब्लाइंड वो पाउचेस क्या होते होते हैं, ब्लाइंड पाउचेस होते हैं। सिर्फ ओपनिंग किसमें होती है, फोरामेन ऑफ लिस्का, जो फोरामेन ऑफ लिस्का, दैट इज ओपनिंग इन द लेटरल रिसेस। तो कहते हैं हम, तो ये एपेंडाइमल सेल्स का लाइनिंग है, तो ये एपेंडाइमल सेल्स का लाइनिंग है। टिश्यू, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज पायामेटर कवरिंग दिस एपेंडाइमल, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, टीला कोरोइडा। अब इसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज व्हेन इन्वेजिनेट इनटू दिस टीला कोरोइडा, टीला कोरोइडा से इन्वेज करेगी टीला कोरोइडा को। ठीक है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, इसका ब्रांचिंग हुआ। नाउ दिस फॉर्म्स द कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, ठीक है। कोरोइड मींस which contains plenty of blood vessels like chorion. तो कोरोइड प्लेक्सस, ये आर्टरियाई कैपिलरीज इन्वेजिनेटिंग इनटू टीला कोरोइडा, एंड देन ये इन सबको एक साथ क्या कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस। एपेंडाइमल सेल्स, पायामेटर एंड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या कहते हैं हम, कोरोइड प्लेक्सस। और जो साइट जहाँ से ये कैपिलरीज एंटर हो रही है इनटू दी वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल है, कैविटी है ये वाला पोर्शन हमने एनलार्ज करके देखा है। फोर्थ वेंट्रिकल का कैविटी हमने एनलार्ज करके देखी है, ये कैविटी है, कैविटी लाइन बाय एपेंडाइमल सेल्स, कवर्ड बाय पायामेटर, इन्वेजिनेटेड बाय टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये जो एंट्री पॉइंट है इनका कैपिलरीज का, दिस इज कॉल्ड कोरोइड फिशर। This is called choroid fissure. समझ में आया? This is called choroid fissure. ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस मतलब एपेंडाइमल सेल्स, पायामेटर, कैपिलरीज को हम एक साथ क्या कहते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, पायामेटर एंड एपेंडाइमल सेल्स, उनको हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। सिर्फ पायामेटर एपेंडाइमल सेल से उनको हम क्या कहते हैं, टीला कोरोइडे, टीला कोरोइडे। ठीक है, तो अब ये टीला जो कैपिलरीज आएगी फोर्थ वेंट्रिकल में, जो कैपिलरीज आ रही है, ये किससे आ रही है, कौन सी वेसल से आ रही है, दिस इज पोस्टेरो इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी हमने देखी थी, वर्टिब्रल आर्टरी का जो फोर्थ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी होती है, उससे ये ब्रांच निकलती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर। ठीक है, ये भी सर्कल ऑफ विलिस होगा, फिर उसके बाद आपका ये चीज भी होगी, के बाद आपका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। इससे निकलेगी आपको ये जो उससे निकलती है, उससे जो ब्रांचेस निकलेगी, वहाँ से जो कैपिलरी प्लेक्सस फॉर्म होगा, दिस कैपिलरी प्लेक्सस देन एंटर्स इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये एंटर कहाँ से हो रहा है, टीला कोरोइडा कहाँ पर है, टीला कोरोइडा से एंटर हो रहा है, और फोर्थ वेंट्रिकल में टीला कोरोइडा कहाँ है, फोर्थ वेंट्रिकल में टीला कोरोइडा कहाँ है, अपर पार्ट है, रूफ के अपर पार्ट में है, रूफ के अपर पार्ट में है, नहीं, वहाँ पे क्या है, सुपीरियर मेडुलरी वेलम, व्हाइट मैटर, पेडंकल्स है। ये कहाँ पे है, लोअर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। लोअर पार्ट में ये जो है, यहाँ से ये एंटर होगा, तो ये गैप दिख रही है आपको, तो ये जो इंफीरियर, दिस इज अ पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सेरेबेलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी की ब्रांचेस, कैपिलरीज फ्रॉम दिस आर्टरी, now they enter through the tila choroida of lower part of roof of fourth ventricle. यहाँ से एंटर होगी into the fourth ventricle, into the ventricular cavity. जहाँ से ये एंट्री होगी, that point is called fissure. जब एक बार एंटर हो जाएगी, कैपिलरीज प्लेक्सस प्लस एपेंडाइमल प्लस पायामेटर, इन सबको हम एक साथ क्या कहेंगे, कोरोइड प्लेक्सस। Now the choroid plexus in the fourth ventricle, it is
टी ये आ गई अंदर आ गई उनका पॉलिफिकेशन जो ब्रांचिंग वगैरह होगी। फोर्थ वेंट्रिकल में अभी कैसे हमको दिखती फोर्थ है? वेंट्रिकल में कैसे दिखती है? This is upper part of roof. This is upper part of roof. Horizontal section में this is upper part of roof and this is lower part of तो ये lower part से enter ये करेगी, लोअर पार्ट से एंटर करेगी तो ये वेंट्रिकल के लोअर पार्ट में होती है। वेंट्रिकल के लोअर तो वेंट्रिकल के लोअर पार्ट में इट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टी। This is horizontal This is limb horizontal and this limb is vertical and this is limb of T. vertical limb of So this T. vertical limb of T So is this vertical limb double of T is double and the horizontal one is and the horizontal one is single. So this horizontal So this horizontal limb it is it is extend it protrudes it from the protrudes from the foramen Luschka. of Luschka. Either side. Either side. ये जो horizontal वाला है ये कैपिलरी part, प्लेक्सस जो होगा ये कैपिलरी प्लेक्सस जो होगा ये फोरामेन लुस्का लुस्का से बाहर एंड आएगा। दिस लोअर पार्ट एंड दिस लोअर पार्ट है जो वर्टिकल लिम है जो डबल लेयर है it comes वर्टिकल out लिम इट कम्स आउट थ्रू द फोरामेन ऑफ मैजेंटी। comes out through the comes out through the foramen of मैजेंटी। ठीक है ठीक है। This is choroid So this is plexus choroid plexus arranged in a T manner T manner, T form, horizontal horizontal limb comes through out the foramen through the of foramen of Luschka Luschka on on either side and this and vertical this one vertical one protrude through the protrude through the foramen Magenta. of मैजेंटी। ठीक है तो सरफेस ठीक है, तो सरफेस पे जब हम डिसेक्शन करने के बाद हम सरफेस पे देखते हैं तो इन तीन कैविटीज से हमें कोरॉइड प्लेक्सस दिखता है, कैपिलरी प्लेक्सस दिखता है। ठीक है इनका फंक्शन क्या होता है? ये सब फंक्शन क्या होता है? ये सब हो तो गया इसका हो तो गया। इसका फंक्शन क्या है? कोरॉइड प्लेक्सस कोरॉइड प्लेक्सस हो गया, अपेंडाइमल सेल्स हो गई, ये सब मिलके क्या करते हैं? वेरी गुड, दे फॉर्म द CSF, प्रोडक्शन ऑफ CSF। ठीक है फॉर्मेशन ऑफ CSF। अब अप्लाइड एस्पेक्ट पे हमने देखा मेडुला से रिलेटेड बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है सो द मोस्ट अगर यहाँ पे ट्यूमर होगा इस रीजन में अगर ट्यूमर होता है तो वो कंप्रेस करेगा ये सारे जो सेंटर्स है वाइटल सेंटर्स है उनको सब कंप्रेस करेगा। ये कौन सा ट्यूमर होता है? इट इज कॉल्ड मेडुलोब्लास्टोमा। दिस वन इज कॉल्ड मेडुलोब्लास्टोमा। It's the most common malignant brain tumor in children. बच्चों में होता है most common malignant brain tumor in children called meduloblastoma. ठीक है ये देखो ये ब्रेन स्टेम है, सेरेबेलम है, this one is meduloblastoma. ना ओरिजिन कहाँ से होता है? ये कहाँ से है? It arises from the poorly differentiated primitive neuroectodermal cells of cerebellar vermis. ये कहाँ से आता है? सेरेबेलर वर्मिस में जो प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स होती है, प्रिमिटिव जो सेल्स होगी सेरेबेलर वर्मिस की उनका पुअर डिफरेंशिएशन के वजह से ये आता है। प्रिमिटिव है सो मोस्ट कॉमनली इन द चिल्ड्रन। अर्ली एज में होगा ये प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स में है सो इट इज मोस्ट कॉमनली इन द चिल्ड्रन arises from the poorly differentiated primitive neuroectodermal cells of cerebellar vermis. ठीक है it is highly malignant and it produces the signs and symptoms of cerebellar lesion. cerebellum में है signs and symptoms हो गए cerebellum के आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में जब आप cerebellum पढ़ोगे तब आपको पढ़ाएंगे। and also it may press upon the vital structures located beneath the floor of fourth ventricle. ठीक है जो फ्लोरोफोन वेंट्रिकल में जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बीनीथ जो वाइटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको भी ये प्रेस करेगा। उसकी वजह से क्या हो गया? कार्डियक इरेगुलरिटीज, टैकीकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड वासोमोटर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है क्या होगा? हेडेक होगा, नॉजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सेरेबेलम के साइंस हो गए ट्रंकल अटैक्सिया, सीजर, सेंसरी डिफिशिएट। ठीक है so it is majority arises in the cerebellum, compresses the fourth ventricle. ठीक है अभी देखते हैं हाइड्रोकेफालिस का भी देखेंगे। सिम्पटम्स कौन से होते हैं? हेडेक, नॉजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ट्रंकल अटैक्सिया, सीजर, सेंसरी डिफिशिएट। वाइटल स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से कार्डियक इरेगुलरिटीज, टैकीकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड वासोमोटर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है अब ये
जो है ये ट्यूमर कंप्रेस करेगा फोर्थ वेंट्रिकल में, यहाँ पे जो हमारी ओपनिंग्स होती है, फोरामेन ऑफ लिश्का होगी, फोरामेन ऑफ मजेंडी होगी, मजेंडी होगी, तो इसको भी ये प्रेस करेगा, उसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा CSF जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कलेक्टेड एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ CSF इन द फोर्थ वेंट्रिकल, and that results in the formation of internal hydrocephalus. excessive accumulation of CSF within the ventricular system produces internal hydrocephalus. ठीक है It is also called non-communicating or internal hydrocephalus due to the obstruction of any of the foramina through which CSF results in the dilatation of ventricular cavity. ठीक है वो सब हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कुछ। ठीक है तो एरिया पोस्ट्रेमा भी है यहाँ पे, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ट्रू वोमिटिंग सेंटर, राइट। सो इसके वजह से यहाँ पे दिखाया है नाजिया वोमिटिंग, ये ट्रू वोमिटिंग सेंटर है यहाँ पे एरिया पोस्ट्रेमा, इसको भी कंप्रेस होगा, इसकी वजह से देखो वोमिटिंग हो रही है बच्चे को, nausea vomiting due to the compression of true vomiting center. ठीक है, तो ट्रीटमेंट यूजुअली सर्जरी, रेडिएशन एंड chemotherapy. And the favorable choice of imaging modality is MRI. Right? ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। चलो क्लास का वक्त भी हो गया हमारा। चलो स्टॉप किया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, पूछना है। So thank you. Have a good day. See you in the next class. Take care.